Assalamu alaikum students. As you know that we have finished properties of alkanes, homologous series of alkanes, physical properties of alkanes, isomerism related with alkanes. One topic is remaining still, and this topic is, as I told you, reaction of alkanes. This topic is reaction of alkanes. Reaction of alkanes. So जल्दी से क्विक रिव्यू देता हूं आपको. अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. Alkanes are saturated hydrocarbon with general formula CnH2n plus 2. And in the previous lecture we have briefly discussed what is the meaning of saturated as far as organic compounds and alkanes are concerned. All bonds are single bond or valencies of carbon satisfied by single bond with fully loaded hydrogen. First member is methane, then ethane C2H6, then propane C3H8, then butane C4H10 and pentane C5H12 and so on. This is the homologous series of alkane. Each member is differed by methylene group, which is CH2 group. I told you. And अब सिर्फ ये रह गया था रिएक्शन ऑफ अल्केन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन इन डिटेल. तो एज फार एज केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंबस्शन. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंबस्शन. I told you all organic compounds can be excellent fuel, like methane, like petrol, like butane. Methane used as a domestic fuel, petrol C8H18, C5 pentane, then hexane, then heptane, then octane. Octane is C8H18. This is actual petrol, main constituent of gasoline. Petrol, you know, that fuel for automobile, mostly 90% it used as a petrol in automobile fuel. और जो तीसरा फ्यूल है वो है ब्यूटेन. इट इज ऑल्सो नोन एज कैंपिंग गैस. तो ये तीन तो फ्यूल आपके बड़े कॉमन है. तो सबके सब बर्न हो सकते हैं, बर्न होते हैं इन द प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन. जैसे कि CH4 गैस है, इसको बर्निंग के लिए वी नीड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द गैसोस फॉर्म. वेन एवर हाइड्रोकार्बन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर्स. बैलेंस कर दें इक्वेशन. 1 कार्बन ओवर हियर, 1 कार्बन इन द प्रोडक्ट साइड, 4 हाइड्रोजन, सो 2 to the 4. टोटल ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट साइड 2 this one and 2 this one, 2 to the 4. This is the balanced chemical equation, and delta H is positive. Negative shows it is highly exothermic reaction, lot of heat is produced. वेरी लाइटर हाइड्रोकार्बन, बहुत लाइट गैस है, इजीली बर्न, एक्सीलेंट फ्लेम देती है. इसका जो फ्लेम कलर है वो ब्लू है, लाइट ब्लू कलर फ्लेम, और कंबस्टेबल है. बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन. तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगी जब आपके पास ऑक्सीजन होगी प्लेंटीफुल, गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, प्लेंटीफुल, और वी कैन से good supply of oxygen, or sometime examiner gives you the word excess supply of oxygen. अगर plentiful हो same thing, good supply लिखा हो same thing, excess में हो same thing, producing carbon dioxide and water. अगर good supply है, याद रख लो, with so much heat. If we have not a good supply of oxygen, limited supply of oxygen, like this, methane reacting with limited supply of oxygen. याद रख लो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी। इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, ये इसकी निशानी है कि मीथेन इज बर्निंग and we are not going to have carbon dioxide, means carbon dioxide is not producing, instead of carbon monoxide is producing. The supply of oxygen is not good, limited supply of oxygen. Which supply? Limited supply of oxygen. बैलेंस कर लें, 4 हाइड्रोजन थे इधर, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए? 2 और 1 3, 3/2 ऑक्सीजन। दोबारा चेक कर लो, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 to the 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 1 3, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 ऑक्सीजन एटम। देखो यहाँ पर आया 3/2, 3/2 मतलब 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो फर्क साफ जाहिर है। ओवर हियर वी नीड for the complete combustion we need 2 moles of oxygen for 1 mole of methane. This is 1 mole of methane. For burning 1 mole of methane, if we will have 2 moles of oxygen, we will have carbon dioxide. Pause करो। Look at the difference. For 1 mole of methane molecule we need 2 moles of oxygen, carbon dioxide is producing. If we are having 3/2 moles of oxygen, मतलब limited supply, 3/2 means 1.5 mole of oxygen, we will have carbon monoxide and water. This is again the reaction is exothermic in nature, but carbon monoxide is producing. तो these kind of reaction is not good for us. हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड is not environmental friendly gas. कार्बन डाइऑक्साइड इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस बिकॉज इट एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज कर लेते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई, तो ये एक डिफरेंस था बिटवीन कंबस्शन हो रही है विथ फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, और बहुत ही कम सप्लाई है, इफ वेरी पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? वाटर तो बनेगा ही बनेगा। ओनली कार्बन इज प्रोड्यूस्ड इन द सॉलिड फॉर्म कॉल्ड सूद, SOOT सूद। तो यहां पर कार्बन सूद जब प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वेरी वेरी पुअर सप्लाई ऑफ पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर भी इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें, 1 कार्बन 2 to the 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो इक्वेशन बैलेंस। अब देखो देयर इज अ डिफरेंस। इन द फर्स्ट रिएक्शन कंबस्शन इज हैपनिंग, सेकेंड रिएक्शन कंबस्शन इज हैपनिंग, थर्ड रिएक्शन कंबस्शन इज हैपनिंग, but the first reaction is having very good supply of oxygen, plentiful oxygen, excess of oxygen, carbon dioxide and water produced. Limited supply, carbon monoxide and water, 2 moles of water in each 3 reaction produced, but the difference is carbon dioxide, carbon monoxide and carbon is the only product. ठीक हो गया? Again I am repeating, methane burning in the good oxygen, good supply of oxygen, carbon dioxide and water, exothermic. Methane limited supply, carbon monoxide, water again exothermic. Methane plus very poor supply of oxygen, carbon plus water again delta H नेगेटिव। तीनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हमारे काम का रिएक्शन दिस वन। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंबस्शन ऑफ मीथेन। मैंने आपको तीनों तरीके से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जिस तरह भी एग्जाम में आएगा, बैलेंसिंग भी सिखा दी, मोलर रेशो भी बता दिया। यहाँ पर 2 मोल चाहिए, यहाँ पर 1.5 मोल चाहिए, और यहाँ पर आपको ओनली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। सबसे कम ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो कार्बन ही बनेगा यहाँ पर। इज इट ओके? अब हम जाएंगे इसके फर्दर रिएक्शन की तरफ। तो इन द फर्स्ट लेक्चर, इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू
Generally, all alkanes are unreactive at room temperature. Alkanes are unreactive at room temperature क्योंकि all bonds are single bond और valencies are fully loaded by hydrogen. सारे के सारे हाइड्रोजन कंप्लीट हैं, तो इनको रिएक्टिव करना पड़ता है. उसके लिए रिएक्शन नंबर 2 है रिएक्शन विथ halogens. Reaction with halogens. All of us know that halogens are members of group 7 in the periodic table. And what is the meaning of halogen? Salt producer. Group 7 में आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. इस ग्रुप में हम वी कैन नॉट इंक्लूडेड फ्लोरीन एंड एस्टेटाइन. मैं पहले बता चुका हूँ फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, और एस्टेटाइन इज अनस्टेबल सॉलिड फॉर्म ऑफ हेलोजन. तो मेनली जो रिएक्शंस होते हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के साथ होते हैं. एंड रिएक्शन विद हेलोजन आर ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस बाय क्लोरीन और फ्लोरीन और ब्रोमीन, फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. और हम इनको क्या कहते हैं? वी कैन ऑल्सो से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजेंस, सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजेंस. एग्जाम्प्लीफाइड अगेन हम किससे करेंगे? मीथेन से करेंगे. मीथेन प्लस क्लोरीन. अगर ये रिएक्शन, इफ वी विल रिएक्शन परफॉर्म एट रूम टेम्परेचर, तो देयर शुड बी नो रिएक्शन. देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल बिकॉज एट रूम टेम्परेचर मीथेन इज अनरिएक्टिव, क्लोरीन इज अनरिएक्टिव. नाउ वी नीड टू चेंज द कंडीशंस. कंडीशन चेंज करेंगे. कंडीशन चेंज कैसे करेंगे? मीथेन लेंगे गैसोस स्टेट में, यहां पर भी स्टेट गैस थी, यहां पर भी स्टेट क्लोरीन की गैस थी. उसको अगेन क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे इन गैसोस स्टेट. कंडीशन चेंज कर देंगे. नाउ वी विल अप्लाई सनलाइट. क्या अप्लाई करेंगे हम? सनलाइट विच प्रोवाइड यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज. दीज अल्ट्रावायलेट रेज अटैक्स ऑन क्लोरीन, और इस क्लोरीन को ये देखो, look at the reaction. This is chlorine molecule. When it will absorb sufficient amount of ultraviolet rays, it decompose into chloride radical. Chloride radical. आज सुबह की वीडियो में मैंने बताया, आपको पहले भी बता चुका हूँ, what are radicals? An atom or group of atom having charge. तो ये बन जाएगा फ्री रेडिकल. क्लोरीन बिकम फ्री रेडिकल. अब ये फ्री रेडिकल इस मीथेन के ऊपर किस पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन के ऊपर. इट डिस्प्लेसेस वन हाइड्रोजन. हमारे पास क्या बचेगा? मिथाइल रेडिकल. सुबह बता चुका हूं, सुबह पिछली वीडियो में मिथाइल रेडिकल, यूट्यूब पर लिंक भी दे दिया है, वीडियो मौजूद है, और वीडियो अल्केन के नाम से मौजूद है. मिथाइल बनेगा, यहां से क्लोरीन मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूलर क्लोरीन विल ब्रेक डाउन, produces 2 chlorine, Cl plus Cl. So 1 chlorine will be attacked on this carbon, produce chloromethane, and the another chlorine react with substituted hydrogen, make hydrogen chloride gas. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. एक बात क्लियर कर दूं, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, नॉट एन एसिड. अभी राइट नाउ इट इज नॉट एन एसिड, इट इज सिंपल हाइड्रोजन क्लोराइड न्यूट्रल गैस, बिकॉज एसिडिटी नीड्स water. When we will dissolve this HCl gas into water, it produce hydrogen positive ion, then it become acidic gas. Right now it is neutral. शायद ही किसी ने बात बताई हो. तो ये क्या बन गया भैया? मोनो क्लोरो मीथेन. This is methane, this is chlorine. Ultraviolet rays break its bond,
molecular chlorine converted into atomic chlorine, nascent chlorine attacked on methane, monochloromethane are derivative of methane, are derivative of methane, and this HCl is called a byproduct. Clear? So this is all about substitution reaction of methane or any alkane through halogens. क्लोरीन से एग्जाम्पलीफाइड किया, यहाँ पर ब्रोमीन होगा तो मोनोब्रोमोमीथेन बनेगा, आयोडीन होगा तो मोनोआयोडोमीथेन बनेगा। रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं है, रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होगा until and unless you need to change, you will have to change the condition। अब देखो, अगर हम इस CH3Cl को यानी कि इट इज कॉल्ड मोनोक्लोरोमीथेन को फर्दर रिएक्ट करवाएं क्लोरीन के साथ, अगेन यूवी रेस को यूज करेंगे, सेम रिएक्शन होगा। ये टूटकर इस अनदर यहां से एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, हमारे पास हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl, दिस बिकम डाई क्लोरोमीथेन plus hydrogen chloride gas, again a byproduct, dichloroethane। दिस इज चेन रिएक्शन, चेन मैकेनिज्म, पहले मिथाइल रेडिकल आया फिर मिथाइल और ये बनते चले गए। अगेन इसको अगर हम फिर क्लोरीन से रिएक्ट करा दें Cl2 और यूवी रेज लगाएं तो वन मोर हाइड्रोजन become substituted and we have only one hydrogen with 3 chloride atom, it is become ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन फर्दर रिएक्टेड विथ क्लोरीन, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इट्स बिकम टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक हो गया? तो देखो वी स्टार्टेड मीथेन and end with tetrachloromethane. It is first derivative monochloromethane, second one dichloromethane, third one trichloromethane and fourth one is tetrachloromethane. So कितने डेरिवेटिव तैयार हुए? 4 डेरिवेटिव्स, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड फाइनली टेट्राक्लोरोमीथेन। और हर दफा पर जो बाय प्रोडक्ट आएगी वो आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आएगी। ठीक हो गया? अगर आप मीथेन की जगह इथेन यूज करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म यही होगा, ब्यूटेन यूज करेंगे यही रिएक्शन होगा, प्रोपेन यूज करेंगे यही रिएक्शन होगा, क्लोरीन की जगह पर कोई सा भी आप लगा लें यही रिएक्शन होगा। दिस इज द चेन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल तैयार होंगे, फ्री रेडिकल ये होते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल हैं। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट, कल सुबह क्या बताया था, कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन लवर आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियस लवर आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक हो गया? तो ये थे इनका रिएक्शन विथ हैलोजेंस। इनकी केमिस्ट्री में, अल्केन की केमिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल, मैंने सारा समाप्त किया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जो सिलेबस के लर्निंग आउटकम्स आपसे शेयर किए थे अकॉर्डिंग टू CI, उनके मुताबिक अल्केन्स ये पूरा हो चुका है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, व्हेन वी डिस्कस्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग, आई टोल्ड यू 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड एंड इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। प्योर कोवेलेंट बॉन्ड याद करो, RH2, Cl2, O2, N2, F2, ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड थे। और जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड इज मेड बाय 2 डिफरेंट एलिमेंट, इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर कंसिडर्ड एज इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। मीथेन इज इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, अमोनिया NH3 इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, HCl इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें 2 और मजीद ये फर्दर डिवाइड हुए थे, पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। याद आ रहा है कुछ? पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। लुक, याद करो, रिकॉल योर मेमोरी। दिस इज HCl, 3 lone pair on it, 3 lone pair on it. This is bond pair, this is bond pair. These are 3
लोन पेयर, तो ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे, क्लोरीन बिकम पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन बिकम पार्शियल पॉजिटिव, द बॉन्ड बिकम पोलर, पॉजिटिव पोल अराइजेस, नेगेटिव पोल अराइजेस, ठीक है, एज वेल एज अमोनिया, अमोनिया अगेन पोलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बिकम पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन बिकम पार्शियल पॉजिटिव। ये कितने मिनट की हो गई यार? 20। ठीक हो गया, अब तो गर्मी लगने लग गई, ठीक है। ये सब के सब नॉन पोलर हैं, H2O2 N2 Cl2 I2 S2 S8 ऑल ऑफ देम आर नॉन पोलर। अब आप सोच रहे होंगे, सोचना भी चाहिए कि अचानक ऑर्गेनिक पढ़ाते पढ़ाते ये पोलर और नॉन पोलर में कहाँ घुस गए, और ऑर्गेनिक में भी अल्केन की बात हो रही थी। अभी बताता हूँ क्यों घुस गए यहाँ पर। देखो बेटा, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था रिएक्शन? मीथेन से। और कहाँ स्टार्ट किया, कहाँ ख़त्म किया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। यही बात थी। हमने वी हैव स्टार्टेड आवर लेक्चर, आवर डिस्कशन फ्रॉम मीथेन एंड एंडेड ऑन CCl फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड। मीथेन से हमने क्या बनाया? CH3Cl। उससे क्या बनाया? CH2Cl2। फिर क्या बनाया? CHCl3। और फाइनली क्या बना दिया? CCl4। दिस इज मीथेन एंड दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन। दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन। बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं, बड़ी स्ट्रेंज फीचर बता रहा हूं, बड़ी खतरनाक फीचर बता रहा हूं। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, चारों तरफ हाइड्रोजन है। नो लोन पेयर, नो, जीरो लोन पेयर ऑन कार्बन, नो लोन पेयर ऑन कार्बन एज वेल एज नो लोन पेयर ऑन हाइड्रोजन। तो इट इज, मीथेन इज नॉन पोलर, मीथेन इज नॉन पोलर, मीथेन इज नॉन पोलर। बट लुक एट द केमिस्ट्री ऑफ क्लोरोमीथेन। हाइड्रोजन, 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 क्लोरीन। अब आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने कितना शेयर किया इलेक्ट्रॉन? ओनली 1। 3 लोन पेयर इसके ऊपर है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मेकिंग 3 लोन पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव हो गया, लिटिल बिट दिस कार्बन बिकम पॉजिटिव, कंपाउंड हो गया ये पोलर। तो मीथेन नॉन पोलर, क्लोरोमीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन पोलर। सिमिलरली डाइक्लोरोमीथेन, अब यहां पर क्या हुआ? सेंट्रल कार्बन हैविंग 2 मोर क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन विथ 2H, these 2 पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो कार्बन बिकम पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी हो गया पोलर। तो मीथेन नॉन पोलर, क्लोरोमीथेन पोलर, डाइक्लोरोमीथेन पोलर, ट्राइक्लोरोमीथेन ऑल्सो पोलर, बट अगेन टेट्राक्लोरोमीथेन नॉन पोलर। बिकॉज अब तो समझ गए हो गए यार, इतने बड़े हो गए, ये सेंट्रल कार्बन सराउंडेड बाय 4 क्लोरीन। हर क्लोरीन के बाद सेम लोन पेयर है 3-3, सबकी ताकत बराबर, सबकी ताकत, सबकी बॉन्ड पेयर खींचने की ताकत बराबर। कैंसिल आउट कर दिया, नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0, नॉन पोलर। और बोलो। तो मीथेन नॉन पोलर, क्लोरोमीथेन पोलर, डाइक्लोरोमीथेन पोलर, ट्राइक्लोरोमीथेन पोलर, फाइनली टेट्राक्लोरोमीथेन अगेन नॉन पोलर। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, काम की इंफॉर्मेशन है, आगे तो बहुत ही काम आएगा जब एएस में जाओगे या आगे बोर्ड की केमिस्ट्री पढ़ोगे। जल्दी जल्दी मैंने समाप्त कर दिया। इसकी दोनों वीडियो तैयार हो गई हैं, दोनों को मैं जोड़कर एक साथ भी लगा दूंगा, यूट्यूब पर अलग अलग अभी लगाता हूँ। अल्केन में पढ़ाने के लिए अब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कुछ भी नहीं है, पास पेपर के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। एक्सोथर्मिक है कि क्या बता दिया? कंबस्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक हो गया, सुबह से काम कर रहे हैं भैया, दिमाग ने अब काम करना छोड़ दिया है। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। दोबारा कल मिलते हैं विद नेक्स्ट ट्यूटोरियल। यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आखिर तक देखा करें। अल्लाह हाफिज़।